Okay, welcome everybody to the third episode of Basement Batik with your host Shahab. Today we're going to be talking about the Tanyawala case, which is now also the Shadra case. So it's a complicated case that keeps getting more complicated. But before we come to today's topic, let me just thank everybody who has already subscribed to my channel. And those who haven't, मैं आपसे request कर रहा हूँ कि आप मेरे channel को subscribe करें. Press the bell icon so that you get alerts to the latest content that I put out there. As you know, as well, please share the video if you like the video. This is a very important episode, and I want this to go out to I want to beam it out and make sure that it has maximum eyeballs so that people understand कि हो क्या रहा है. हमारे सिस्टम की कुछ limitations है, वो मैं सारी चीज़ें आज के शो में डिस्कस करूँगा. So just want to thank everybody. Please do subscribe. I'm also on TikTok now, so you will see the handle over here. If you can, follow me on TikTok as well. So let's get started. So the Tanyawala case. इस केस में हुआ क्या? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये सारा मामला शुरू हुआ 21 मार्च को और आज हम 9th April. Well, when you watch the show, well, it'll be the 9th of April. ये मसला सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ रहा है और मैं चाह रहा था कि मैं चुप रहूं. मुझे पीछे से बैक एंड में मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सम ऑफ इट इज़ एक्सक्लूसिव कंटेंट जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा. लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं सबको, सारी हमारी एजेंसीज़ को या पंजाब पुलिस को स्पेसिफिकली गिव देम इनफ टाइम टू डू देयर ऑन इन्वेस्टिगेशंस एंड come out, because हम लोग को I've been sharing stuff on Twitter. सबको पता है कि मैं क्या शेयर कर रहा हूँ और क्या नहीं शेयर कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ शेयर नहीं किया. I've kept a lot of information close to my chest, and even now today I'll be sharing some exclusive content with you, but not all of it, because some of it is can compromise the investigation or well, let me just say that it can compromise. So I will not give out any information that can compromise the investigations that are going on. अब मेरा मकसद ये था कि मैं चुप रहूँ और जब ये सब कुछ आ जाए फिर मैं अपनी वीडियो करूँ. बट ये मामला इतना उलझता जा रहा है कि अब मज़ीद चुप रहना इज़ नॉट एन ऑप्शन. मैं देख रहा हूँ कि हमारी पुलिस जो है, और सिर्फ मैं नहीं देख रहा, सारे देख रहे हैं. आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अ लॉट ऑफ पीपल, ये होता क्या है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, कि देयर अ स्प्लिट. खैर ये हर सोसाइटी में होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये एक लिबरल और कंजर्वेटिव्स का एक वो है कैंप्स है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग ऑन विच of these social status you belong to, you get influenced by them, and then it's all about tribal affiliation and अब किस तरह अगर आप for example liberal है तो आपको you have to toe their line, even if you in your heart of hearts believe that what is going on is wrong. You will not speak up against it, because if you do, people will start attacking you. आपकी अपने tribals आपको attack करेंगे, ठीक है. So एक बहुत tribalistic attitude है हम सबकी. It's the same with the conservatives. कुछ आप कहेंगे अरे यार ये तो हो गया liberal. So objectivity gets thrown on the bus from the get-go in every Pakistani discussion. It's unfortunate, but this is what happens. And I don't care for what you call me. You can call me whatever label that you want to put on me. Doesn't make a difference, because for me, I look at things with a different angle. मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सच्चाई बताऊँ. That's my driver. I have मुझे कोई पैसे नहीं मिलने से या जो भी है. आज मैं देखें जो भी कर रहा हूँ, मुझको लोग अक्सर कहते हैं कि मैं PMLN का सपोर्टर हूँ, लेकिन आज का पूरा मेरा एपिसोड इज़ गोना बी pretty much against Punjab police, which if you are in the political scene, you would think that I'm, as a Pakistan Muslim League Noon supporter, which I'm not. But okay, fine, if you think that is, मैं आपके मुंह नहीं बंद कर सकता. तो फिर आपको ये लगेगा कि मैं आज उनकी वर्जन आपको रिप्रेजेंट करूँगा, बट दैट इज़ नॉट द केस, ठीक है. आई सबमिट टू द ट्रूथ. I don't believe in taking sides. Okay, when you're talking about things that are happening on the ground, as Muslims and as human beings, as compassionate people to one another,
वी शुड नॉट बी टेकिंग साइड्स, ठीक है, ये हम लोग साइड्स नहीं लें, लेट्स नॉट टेक साइड्स बट लेट द एविडेंस लीड अस टू द ट्रूथ। वो लेफ्ट में हो, वो राइट में हो, वो सेंटर पे हो, डजेंट मैटर, बट व्हाट वी कैन नॉट डू, ये अच्छा हमारे लिबरल्स में ये बहुत है, मे बी इवन इन आवर कंजर्वेटिव्स, कि देयर इज अ पावर हायरार्की दैट दीस गाइस सब्सक्राइब टू, ठीक है, यानी कि एक पावर हायरार्की है जिसमें पंजाबी सुन्नी मर्द जो है वो बिल्कुल टॉप पे। तो फ्रॉम द गेट गो अगर आप पंजाबी मर्द हैं तो बस, और आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया किसी के साथ, तो अगर से किसी कराची वाले का फड्डा हो गया पंजाबी के साथ और पंजाबी है भी सुन्नी, ठीक है, तो फिर आपने सबसे उसको ये रॉन्ग एज्यूम करना है, ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ लिबरल फ्रेमवर्क दैट पीपल liberal progressive framework. I don't know why this framework has come up, but that's how reality is for those guys these days, ठीक है। So from the get go, गोरे को काले पे फौकियत है तो काले को आपने सपोर्ट करना है क्योंकि ही इज़ द अंडरडॉग, चाहे उस बंदे ने जाके जो भी हराम पाई की हो उसको बस आप भूल जाए, बिकॉज ही हैज़ एन एक्सक्यूज़ फॉर जितने हज़ारों साल के साथ, या पता नहीं कितने 100 साल के ऊपर, या 200 300 400 साल इनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है अमेरिका में, तो इनकी जितनी भी गलतियाँ हैं वो जस्टिफाइड हैं बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स। बहरहाल हमारे यहाँ पे भी ये पैराडाइम आ गया कि यार यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस पावर स्ट्रक्चर्स एंड सुन्नी पंजाबी मेल हैज़ टू बी द बैड गाय। मसला अब ये है कि इस केस में सब सारी सुन्नी पंजाबी हैं, तो अब इसको किस तरह हैंडल किया जाए। और एक तो इतना सुन्नी है कि उसका नाम ही अबू बकर मुआविया है, ठीक है। सो फ्रॉम द गेट गो वहाँ से भी एक मसला खड़ा हो जाता है, उस पर बाद में आएंगे ऑन दिस टॉपिक। तांदिया वाला केस में होता क्या है, तो 21 मार्च को ये वाक़या होता है जो कि सिटी थाना में रिपोर्ट किया जाता है ऑन द 21st ऑफ मार्च को अराउंड द रिपोर्ट इज़ एक्चुअली फाइल ऑन द 22nd ऑफ मार्च, लेकिन ये वाक़या होता है 21 मार्च को। 21 मार्च को क्या होता है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ द कंटेंट्स ऑफ द FIR। इससे पहले कि मैं FIR के कंटेंट्स में आऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सेक्शंस क्या इन्वोक किए हैं। पाकिस्तानी पीनल कोड PPCs को कहते हैं। इसमें कुछ दफ़ात इसके जो हैं वो इन्वोक किए गए हैं। सबसे पहली सेक्शन है सेक्शन 376, और फिर दूसरी सेक्शन जो कोड की गई है वो सेक्शन 511 है। नाउ व्हाट इज़ सेक्शन 376 and section 511? I'm going to be sharing that with you. If you just to give you a quick brief of what these sections mean, if you could see it probably on your screen now. Section 376 is punishment for rape. Okay, so ये जो वालिद साहब है जिन्होंने ये FIR कटवाई है, वो पुलिस, उनको तो जाहिर सी बात है सेक्शन नंबर्स का पता है नहीं, तो पुलिस आपको बताती है कि अब हम ये सेक्शन इन्वोक कर रहे हैं, बेस्ड ऑन योर स्टोरी वो ये सेक्शन इन्वोक करते हैं। तो उन्होंने इन्वोक किया 376 विच इज़ पनिशमेंट फॉर रेप। यू कैन सी व्हाट उसमें क्या क्या लिखे हैं मंदरजात। सॉरी इंग्लिश में है, अगर आप चाहें तो उर्दू में भी आप ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हैं, पाकिस्तानी पीनल कोड को। तो इसमें इस्तदा की गई है कि पनिशमेंट फॉर रेप दी जाए, ठीक है। दूसरी सेक्शन कौन सी उन्होंने कोड की है, दे हैव कोडेड सेक्शन 511 का अगर आप डेफिनेशन पढ़ें, इट मीन्स दैट punishment for attempting to commit offenses punishable with imprisonment for life or whatever. Okay, so it basically is not a crime committed, but there was an attempt to commit a crime. Okay, तो अगर आप 376 को और 511 को एक साथ पढ़ें तो क्या इसका आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि इस्तदा ये की गई है कि एक ऑफेंस कमिट किया गया है जो रेप के ज़ुमरे में आ सकता था, हुआ नहीं, क्योंकि 511 को इन्वोक किया जा रहा है कि अटैम्प्ट किया गया था, और क्योंकि अटैम्प्ट किया गया इसलिए आप उसको पनिश करें विच इज़ एक्चुअली अ लीगल कॉल कि बिकॉज देयर वाज एन अटैम्प्ट, जैसे लाइक यू कैन सी कि 511 में लिखा हुआ है कि यू कैन बी गिवन अ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। सो ये होती है इस्तदा इनकी, इसको ये सेक्शंस कोट किए जाते हैं, और फिर FIR में फिर मज़ीद आके लिखा जाता है कि उस दिन होता ये है कि मगरिब के नमाज के टाइम पे ये लोग इफ्तारी अपनी करते हैं और बच्चा जाता है मगरिब की नमाज़ पढ़ने, और फिर नमाज की पढ़ने के बाद वो वापस घर पे नहीं आता।
तो ये बाप निकलता है अपने दो दोस्तों के साथ जो नेबरहुड के लोग होंगे इसको ढूंढने के लिए। वो जब निकलते हैं तो उनको कहीं से आवाज़ आती है अपने बच्चे के रोने की, और वो उस घर के अंदर फिर एंट्री मारते हैं अपनी। और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अबू बकर माविया साहब जो हैं वो बग़ैर अपने खैर एफ़आईआर में लिखा हुआ है कि वो देखते हैं कि उनके बेटे की शलवार नहीं है, लाइक ही इज़ विदाउट हिज शलवार। और इम्प्लाइड ये है कि अबू बकर माविया भी अपने शलवार के बगैर है वहाँ पे। और कुछ होने ही वाला था कि वो ही गॉट इन टाइम और कुछ हुआ नहीं। तो वो ये क्लेम करते हैं फर्दर ऑन इन दिस एफआईआर, अगर आप इसको पूरा पढ़ें, कि मैं तो पहुंच गया टाइम पे और मैंने अपने बच्चे की इज़्ज़त बचा ली, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ये कल किसी और के बच्चे के साथ हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये एफआईआर कटवा रहा हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको मैक्सिमम पेनल्टी दी जाए। ये है भाई बाप का क्लेम। यहाँ पे सारे बात ख़त्म हो जाती है। इसको पिकअप करती है हमारी मीडिया जब इसको पिकअप करती है, इसको बीम आउट करती है, एंड यू नो बच्चों के इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे शोज़ में आते हैं, जियो ने दिखाया, कुछ और चैनल्स ने दिखाया, और फिर वावेला मच जाता है। ज़ाहिर सी बात है, बात ही ऐसी है। यू नो नाउ जस्ट वांट टू टॉक टू यू अ लिटिल बिट अबाउट एक्यूजेशंस। एक्यूजेशन होती क्या चीज़ है? आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम जो लगाया जाता है, पहली बात तो ये समझने वाली है कि एफआईआर में एक क्लेम दिया जाता है, ठीक है। यू ऑब्वियसली आर the one who is accusing the other party. So immediately जब आप किसी की भी FIR पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये that's the first version of the story that you're listening, because that's the first FIR, first information report. So when you're reading that, you immediately, your mind will start assuming this party to be the wrong party, because obviously FIR उसने कटवाई है। लेकिन who decides कि यार इन दोनों में क्लेमेंट कौन सच है? जो बंदा जो FIR काट रहा है, क्या वो सच्चा है, या जो दूसरी पार्टी है वो सच्चा है? बिकॉज वी डोंट नो द अदर पर्सनस स्टोरी। सो दिस इज़ वाई द लॉ कम्स इन। लॉ फिर डिटर्मिन करती है कि भाई हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दैन डू देयर ओन इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट कि यार कौन सही है कौन गलत है, फिर उसके लिहाज से आपको पनिशमेंट्स मिलती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू एक्यूजेशन क्यों लगाई जाती है और एक्यूजेशन का मकसद क्या है? उसका मकसद ऐसा होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप झूठी एफआईआर कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो द होल कॉन्सेप्ट इज टू मेक द क्लेम सो अनबिलीवेबली हॉरिबल कि कोई इसको क्वेश्चन भी करे ना तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली बुरा लगेगा, ठीक है। इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ऑफ अभी हम गज़ा का देख रहे हैं, गज़ा में क्या हो रहा है। वहाँ पे हमारे जो ये इजराइली लोग हैं, उन्होंने क्या किया था, जब 7 अक्टूबर को ये वहाँ पे वाक़यात शुरू हुए हैं, यू नो तूफ़ान अल-अक़सा जो सारी वहाँ पे एक ऑपरेशन हुई थी, तो इजराइल ने बहुत सारे क्लेम्स बनाए, ठीक है। और वो क्लेम्स इतने कोई गोरी डिटेल्स के साथ थे। फॉर एग्जांपल, वेरी फेमसली और इनफेमसली दे पुश दैट प्रोपेगेंडा ऑफ 40 beheaded babies, ठीक है, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनीथिंग। लेकिन इट वॉज अच्छा नॉट जस्ट beheading babies, उन्होंने आगे से और भी लिखा कि यार सम बेबीज वर पुट इन ovens, यानी कि उनको चूल्हे में डाल के अंदर दरवाज़ा बंद करके उनको पका दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप ये किसी को भी कहेंगे उस बंदे के बाल खड़े हो जाएंगे कि यार ये क्या हुआ। नो वन कैन डिफेंड दैट, एंड दैट्स द होल पॉइंट कि अगर आपने इसको क्वेश्चन भी किया ना, तो जस्ट बाय द वर्च्यू कि आप इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, यू हैव लॉस्ट योर ह्यूमैनिटी। अब आपको लोग कहेंगे कि यार यू आर अ टेररिस्ट अपॉलजिस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इज़ द सेम थिंग ओवर हियर कि यहाँ पे एक इतना बड़ा क्लेम डाल दिया और इतना हॉरिफिक क्लेम है कि अगर ये लेट्स से अगर अ फ्रैक्शन भी इसमें सच्चाई है, तो जस्ट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लेट्स से टेक द अदर पार्टी साइड, या आई एम इवन नॉट इवन हाउ आई एम टेकिंग साइड्स, इफ आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन्स कि यार क्या ये वाकई में बात सच है, इमीडिएटली यू कैन डिह्यूमनाइज मी, ओके, कि यार हाउ डेयर यू क्वेश्चन द फादर। कौन बाप अपने बेटे के बारे में इस तरह के इल्ज़ामात लगाएगा और उसको इस टेंशन के साथ रखेगा। बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, एक और चीज़ वो एफआईआर में लिखी हुई है कि ना सिर्फ उनको बगैर सलवार के पाए उन्होंने, उनके हाथ में एक क्लाशनिकोव भी थी, ठीक है। सो बेसिकली ही इज़ विदाउट हिज पैंट्स विद अ क्लाशनिकोव इन वन हैंड and he's about to rape his child. So this is the imagery I'm showing it to you, that I'm trying to put in your head, because that's what the FIR says. तो ये है accusation. अब इसको अब मैं अगर question करूँगा
कि जब मुआविया साहब को जब इन्होंने अरेस्ट किया है 22 मार्च को, तो कोई क्लाशनिकॉव नहीं मिली, नो क्लाशनिकॉव वाज फाउंड. फॉरगेट क्लाशनिकॉव, इनको कोई छोटे फायर आर्म्स भी नहीं मिले. I'll give you, as the show goes on, I'll give you exclusive footage of CCTV cameras and what have you. So you will see that his house was raided, and they found nothing there. Okay, so matlab, they would have found something in there, bullets or whatever it is. Like nothing was found. Okay, so right off the get go, because of these events, you immediately start asking questions. कि यार इस FIR में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, XYZ चीज़ें लिखी हुई हैं, XYZ claims हैं, ठीक है. Claim X might be true because I don't know, but claim Z, which basically talks about him having a Kalashnikov, is quite clearly false. Okay, now because that becomes false, then claim X and Y also start becoming questionable. कि क्या ये बात मुझे और further probe करनी चाहिए. That's exactly what the police are supposed to do. They're supposed to look at all the claims and investigate and find out if it's true or not. Having said that, ये पर्चा कटता है 21 मार्च को और 22 मार्च को ये जाते हैं, सॉरी, पर्चा कटता है 22 मार्च को, वाक़या होता है 21 मार्च को, पर्चा कटता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही ये लोग जाके इनको अरेस्ट कर देते हैं, आपके अबू बकर मुआविया साहब को. ही इज़ टेकन टू जेल एंड ही स्टेज इन जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, एंड व्हाइल ही इज़ इन जेल ये कहानी अब निकल जाती है ऑन द मीडिया. मीडिया में सारे चैनल्स को दिखाते हैं, एंड देन सडनली एवरीवन गेट्स ऑन द बैंडवैगन, लिबरल्स, बिकॉज एवरीवन ऑब्वियसली फील्स, unfortunately इस रमदान में already we have heard of 4 cases of kids being raped by Maulvis or sexually assaulted, and in one case I think there was also that he killed the child, but these are such horrific things and happening with so much frequency that it's hard to take a side against it, because जाहिर सी बात है, like I said, claim ही ऐसा है कि इसको oppose करना है, इसको question भी करना will be seen as, the word that is being thrown around is rape apologist. Okay, just like the Israelis are using words like terror apologist. So, by the way, no one has defended anything of that sort. जो online चल रही है, ये सारी दूसरी बातें चल रही हैं, दूसरे केसेस चल रहे हैं, किसी ने इसको डिफेंड नहीं किया है. अबू बकर मुआविया के केस को डिफेंड किया गया है because of the history of this case, and we will come to that shortly. So होता ये है कि अब वही all the tribal affiliates get into their little groups and people start throwing claims. One person, and not one person, many people, but one person, I'm just going to show you the tweet of one person, Sayyid Muzammil. What does he say? Just look at his tweet and look at the wording. I just want you to understand how people operate, okay? A minor was brutally raped in a seminary while he was fasting by a state-backed cleric named Abu Bakr Muawiyah. State-backed bhi ho gaya, theek hai? Now look at the claims that he's made. Brutally raped. First of all, he probably did not read the FIR, and if he did, he's lying. Okay, because the FIR itself says that Section 511 ko invoke karta hai, which means it was an offense that was not committed. It was an attempt to commit an offense. Okay, so right off the get-go, he makes the claim that is brutally raped. Like, if you want to visualize that, what does it mean? Besides the fact that he was penetrated anally. Sorry, I have to get into these details, but you have to. But basically, you're talking about blood all around and, real gory scenes. The other claim he makes is that this happened in a seminary. False, okay? As now we have determined, he actually, वाक़या रोनमा होता है in a lady's house called Khala Sakina in that neighborhood, who actually had invited Abu Bakr Muawiyah to her place. Now, for people who don't know who Abu Bakr Muawiyah is, okay, I did not know him, frankly. I know him a little bit in the sense that I've heard, YouTube में आ जाती हैं सारी मुनाजराती, because he's one of these मुनाजराती type मौलवीज, बैठ के कभी शियाओं के बारे में बात करते हैं, कभी कादियानी के बारे में बात करते हैं. So he has kind of an aura, okay? So and a lot of young kids are into polemics से मुराद है मुनाजरा, ठीक है, कि यार एक फिरका एक दूसरे फिरके के साथ मुनाजरे में बैठा हुआ है, तो a lot of kids find this very exciting, and they basically extol these people as celebrities कि यार क्या आपने, to give you an example,
मोहम्मद हिजाब हो गया ऑनलाइन, या फिर डैनियल हकीकचू हो गया, जो ही बेसिकली इज़ वेरी पॉपुलर अमंगस्ट on Muslim Twitter because he basically debates atheists or other people of other faiths, and people get excited about these things, because everyone wants to be convinced that that we are on the right side. So इनकी बड़ी traction होती है. So now when this guy reaches this lady's house, his version of events, and as you'll come to find out in a little bit, a lot of people back this claim, is that all these kids follow him and they get together over there. और होता ये है कि वहाँ पे, well, I'll come to the story a little later, but let's just go back to Sayyid Muzammil's tweet, okay? Brutally raped, which is completely contradictory to the FIR. Then he says in a seminary, completely wrong to what's in the FIR. While he was fasting, wrong. Very clearly, the FIR says that he was this happened after Maghrib prayers. Maghrib के बाद कौन सी आप रोज़ा रखते हैं मेरे भाई? So this is like, and this is why I say कि देखें ये जो claims, एक तो एक चीज़ हुई है बुरी, ठीक है, हुई कि ना हुई वो बाद में डिटरमिन होगा, लेकिन जब इन जैसे लोग जिनके पास इतनी tracks, so many eyeballs watch these people, they have a platform, okay, my mic is probably going to be heard by a few hundred people, but these are people who are followed by thousands of people. I mean, you go look at the views he gets on his videos, okay? He's making these spectacular claims, and his tweet is still online. बेगैरती की हद ऐसी है कि he hasn't retracted this tweet. Forget about retracting. Hasn't even given out a tweet saying कि यार मैंने ये गलती कर दी थी, इस तरह नहीं है और ये इस तरह था मामला, नहीं करेंगे. Because that's not how propaganda works. ये लोग बैठ के पूरी वक्त सारे वक्त ये पीटीआई को गालियां देते हैं कि ये लोग पीटीआई जो है वो इस तरह के झूठ बोलती है, और एक बार just sometimes go watch Sayyid Muzammil and what he has to say about PTI, and किस तरह how he tries to hair split on and try to explain to you with पता नहीं कौन सी psychological theories and philosophical theories about how effective PTI propaganda is. But what is he doing right here? This is propaganda for you. So ये पूरी एक ट्राइबल पे शुरू हो जाती है, इसमें बहुत सारे लोग फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन. देयर वर मैनी पीपल बिफोर हिम, मैनी पीपल आफ्टर हिम, एंड वन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु डू दिस, लाइक उनका तो दैट्स देयर ग्रिफ्ट, दैट्स ऑल दे डू इज़ वो दूसरों के उलमा को पकड़ते हैं कि यार इसका मुल्ला ये करता है, और हमारे अपने मुल्ले पे कभी बात नहीं करते. इनफैक्ट कभी आप उनके टीएल पे जाए, अपने मुल्ले की ये लोग ऐसी ये लोग कसीदे पढ़े होते हैं, अल्लाह माफ़ करे. यानी कि अगर इमाम मेहदी होते तो इनके सारे मुल्ले होते हैं. और इनके यहाँ जो मसाइल चल रहे हैं, इनके जो मुल्लाओं ने किया हुआ है, ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिटेल, इट्स काइंड ऑफ टेकिंग इट ऑफ ऑन अ टेंजेंट. उस पर कोई बहस नहीं करनी, चुप बैठे हैं वो लोग. कभी 2 साल से एक केस चल रहा है जिसको मैं अभी इस वक्त रेफरेंस नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने हराम है कि उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा उसके बारे में, लेकिन दूसरे के मौलवी के ऊपर वो लोग बिल्कुल बाल की खाल उतार के बताएंगे वो ये भी करता है, वो वैसे भी करता है, इतना कमीना, और ये नहीं करता है, वो नहीं करता है. बहरहाल, सो this is the claim that Sayyid Muzammil makes. Okay, now let's come back to what the media has done. अब मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा ने एक स्पेसिफिकली I think he did the most, even though I would say he didn't do a good job, but he did the most fairest job of all of the anchors that I've seen online on mainstream media. He talks about, he gives basically एक clip चला था. वो क्लिप था, एक ट्रंकेटेड क्लिप था ऑफ जो SHO साहब थे या जो भी थे वो वहाँ के करता धरता पुलिस वाले थे. उन्होंने जब मुआविया को जब उन्होंने गिरफ्तार किया था, तो अबू बकर मुआविया को के सामने अब वो खड़ा हुआ है और उसको वो झाड़ है. अब वो झाड़ने की जो बात बताई गई थी, उसको लोगों ने क्या किया है, उसको एडिट करके, अच्छा शाहज़ेब खानज़ादा ने ये किया कि he didn't edit the clip, he actually showed the whole clip, which is good, which is very brave of him as a journalist, and that's the kind of due diligence that people expect from these journalists. इतनी बड़ी सैलरी लेते हैं, पता नहीं किस बात की ये लोग सारे. So just watch that clip and see what it has to say. क्या कर रहा था? 10-12 को बच्चा अकेला था, वो बच्चा झूठी बोल रहा. वो कहाँ पे ले गई? क्यों आपने काफी देर उसको अपने कमरे में रखा? वो क्यों आपका जिस्म दबा रहा था?
सर जी मेरा जिस्म भी दोबारा था, 10-12 बच्चे वहाँ खेल रहे। आपने क्यों उसको रेफर दी? अपनी गलती उठा के उधर रख के आओ। मैंने भी कुछ उसको दी, मैं सर मेरी गल तो मेरी गाड़ी में होती है, वो जो बाद में उसका बाबुल जाकर बच्चे को लेकर आए, बच्चे के सामने इसकी गुफ्तगू करवाए जी। और इसको लेकर भी मजिस्ट्रेट के पास पेश करें। इसको जुल्म और ज्यादती के दाग कर दिया आपने पकड़ के। जी, तो आपने देखा कि शाहजेब खानजाना ने जो क्लिप दिखाई है पूरी क्लिप है, और उस क्लिप में वेरी क्लियरली यू कैन सी कि देयर इज़ नो एक्यूजेशन ऑफ हैविंग सेक्स। ओके, ये आपके SHO, आई एम अज्यूमिंग ही इज़ द SHO, कि ही very clearly is saying to Abu Bakr Muawiyah ke why was this kid giving you a massage, which obviously in itself was wrong. Abu Bakr Muawiyah इस बात को डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं हुआ, आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन बहरहाल डिस्कशन यही चल रही है कि बच्चे के पैर दबाए हैं या बच्चा आपको क्यों दबा रहा था। वो उसको तो फ्लैटली डिनाई कर रहा है कि ये हुआ ही नहीं, और मेरे साथ और भी बच्चे थे और भी लोग थे, आप उनसे पूछ लें। लेकिन बहरहाल दिस इज़ द वर्जन ऑफ इवेंट्स। सो अब आप देखें कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। या तो इनके पास पूरी फाइल नहीं थी, पूरी ये क्लिप नहीं थी, या अगर क्लिप थी, द गाय हु फर्स्ट पुट दिस क्लिप इन देयर ट्राइब, ठीक है, उसने उस क्लिप ये हिस्सा हटा दिया फॉर वट एवर रीज़न। एंड दिस इज व्हाट आई कम बैक टू कि यार ऑब्जेक्टिविटी को फॉरन दे जस्ट थ्रो इट अंडर द बस कि नहीं ये तो मौलवी है। अब मौलवी को अगर बुरे हम लोग ने दिखाना है इसको बुरे लाइट में, तो इसको हम जितना भी झूठ बोल रहे हैं तो या थोड़ा बहुत हम लोग समटाइम्स टेक्निकली इसको झूठ भी नहीं बोल सकते ना आप इसको, यू आर जस्ट नॉट गिविंग द होल फैक्ट्स, इट्स अ हाफ ट्रूथ बेसिकली, एंड समटाइम्स इट्स हाफ ट्रूथ्स आर इवन मोर डेंजरस देन falsehood. So that's what they do, they'll give you the half truth because if they give you the full truth it's inconvenient for them. Okay, so right off the get go you can see कि यार ये जो claims थे brutally raped हो गया और ये हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया, this is ये वीडियो से ही पता लग रहा है कि there's more to this than meets the eye. And this is exactly why, well, first of all, I kept quiet for a week, okay, because I wanted to see what was going on. I actually kept quiet until the magistrate released him. That's when I came into the picture. और magistrate ने इनको release करते हैं, और well, order comes out on the 30th, and you'll see it coming up shortly. And I think on the 1st of April or 2nd of April, he's out of jail. अब होता ये है कि आफ्टर ही गोज टू जेल अ फ्यू डेज elapse और कुछ होता नहीं है, बल्कि मतलब ऑब्वियसली गाइज इन जेल एंड सम पीपल फ्रॉम द नेबरहुड दे कॉन्टैक्ट इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, दे आस्क हिम टू इंटरमीडिएट इन दिस मैटर कि आप आएँ, हम आप सालिसी करें और इस मसले को ख़त्म करें. बाय द वे, वन ऑफ द पीपल हु कॉल्स हिम इज़ एक्चुअली द फादर हु जिन्होंने ये FIR फाइल की है. अब हुआ ये है कि अच्छा 22 मार्च, याद रखिए 22 मार्च को अबू बकर मुआविया को ये लोग गिरफ़्तार करते हैं, और 29 मार्च को इब्तिसाम साहब जो आते हैं वो इस जरगे की या पंचायत में आते हैं. ठीक है, so many days have elapsed, but in this time period the police is doing their work. Okay, वो लोगों से इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, वो बच्चे को भी बाप को भी कहते हैं कि यार बच्चे को दो, हम उसको वो करना चाहते हैं, वी नीड टू टेस्ट हिम टू सी कि अगर कोई साथी हुई भी कि नहीं हुई. आप तो कह रहे हैं कि नहीं हुई, लेकिन हमको तो अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है. बाप उनको बिल्कुल एक्सेस नहीं देता है, बोलता है कि नहीं, यू कैन टच माई सन, यू कैन, मैं आपको जब कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो आप मेरी बात को क्यों नहीं मान रहे. सो एंड देन व्हाट हैपन्स इन दिस, इस दौरानिए में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बाप को पता लगना शुरू होता है कि जो लोग वहाँ पे थे, जैसे खाला सकीना वहाँ पे थी और भी बच्चे थे वहाँ पे, वो उनके अकाउंट को कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू कर देते हैं. अब इन भाई साहब के पड़ जाते हैं लाले, यार अगर तो बात निकल पड़ी कि मैंने ही झूठ बोला है तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे. ठीक है, तो वो क्या करता है, ही एक्चुअली डिसाइड्स कि यार ही कॉन्टैक्ट्स पीपल इन हिज नेबरहुड. PTI के एक साहब हैं, शहीर कुछ नाम है उनका, मुझे अभी तरह याद नहीं आ रहा, शहीर भट्ट. ही गेट्स हिम इन्वॉल्व, पूरा एक जरगा वो बिठाते हैं और इब्तिसाम इलाही को वहाँ पे बुलाया जाता है कि आप इस जरगे पे आएँ. ठीक है, वो कभी उनसे प्राइवेसी में नहीं मिलते हैं, उनके घर पे जाके नहीं मिलते हैं, वो इसी जरगे पे जाते हैं. फिर वो आपको पता है कि जरगे में क्या होता है, सारी बातचीत वो ऑलरेडी आ चुकी है, यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड.
माफ़ी इख्तलाफी होती है एंड everything is done and people move on. Now in this time period जब ये बात निकलती है बाहर पब्लिक में आती है तो लोग का क्या अजम्पशन होता है? लोग का अजम्पशन ये है कि यार ये मौलवी जो है अपने मौलवी भाई को बचाने आ गए और गन तो उसने मारी है और ये अपना पावर यूज़ करके बिकॉज इन मौलवियों के पास बड़ी पावर है, ये FIR में भी ऑलरेडी लिखा हुआ था ना कि बंदूक है इनके पास और ये अपने अपने ब्रादरी को लेके ये बेसिकली इसको प्रेशर करके इन्होंने बाप को पीछे हटवा दिया अपने क्लेम से, which actually is not true. But propaganda, that's how propaganda works. So you have to accept, if you're in the tribe, you have to accept their version, otherwise they'll excommunicate you. तकफीर करके आपको अपने अपने उसमें से निकालेंगे, ये तो रेप अपॉलॉजिस्ट निकालो उसको बाहर. खैर, इब्तिसाम साहब के बाद इब्तिसाम साहब ने जो करते हैं अपना सालिसी. अच्छा, बाय द वे ये भी एक चीज़ है कि आप देखें कि पुलिस हमारे यहाँ चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकती. ठीक है, हमारे लोग जो हैं दे कीप कमिंग बैक टू द मौलवीज़. जो भी हमारे वो चाहे चौधरी हो गया या जो भी हो गया, लाइक इन दिस केस इट्स नॉट जस्ट द मौलवी. PTI का भी एक बंदा था, उसको उन्होंने इन्वॉल्व किया, उसने ये जरगा लगाया था ना. सो it's at the end of the day it's not the police that solves your problem. In fact, अगर आपने कभी पुलिस से वहाँ पे डील किया पाकिस्तान में या जुडिशरी से आपने डील किया वहाँ पे, it is nightmare. You don't want to be in that. कोई शरीफ आदमी वहाँ पे नहीं जाना चाहेगा. और कौन है सिस्टम में जो एक फेक FIR में पिसा नहीं हुआ? मेरे साथ हो चुका है. Someone has claimed something on FIR which is completely false against me. In my past, that's done. Forget that. But this is the reality of what we face. This is our justice system. इब्तिसाम साहब ने जो किया वो किया. I just want to show you this video of ये गटर खोलना बहुत ज़रूरी है. ये गटर में खोलता हूँ, आप देखें ज़रा इसको. उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी ये कैसे हो सकता है कि बरना हालत में हो कोई बंदा और बगैर कपड़े पहने निकल जाए वहां से. अब इस जाहिल आदमी से कोई पूछे कि तू हर मामले में जहालत दिखाता है, तूने FIR तो जरा गौर से पढ़ लेनी थी, उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है. बस सिर्फ एक शौक है मौलवियों का फ्रंटमैन बनने का, और इस तरीके से मौलवियों के अंदर जो बड़े बड़े इनके आप समझ लें मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, अल्लामे हैं, वो भी इस तरह के मामलात में फिर टपक पड़ते हैं. और वो जो लाहौर में 2 गले फाड़ने वाले भाई बैठे हुए हैं अहले हदीस फिरके के, उनमें से जो बड़ा भाई है इब्तिसाम इलाही ज़हीर, वो पहुंच गया वहां पे और एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से, हालांकि ये बंदा पढ़ा लिखा आदमी है, इसे सब कुछ पता है कि इस तरीके से पंचायत बिठाई जाती है. इन्हीं कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ये ना, यहां पे कोई कबायली सिस्टम है. यहां पे बाकायदा अदालतें काम कर रही हैं, पुलिस का महकमा मौजूद है, बाकी सारी एजेंसीज मौजूद हैं. उसने जाके अंदर खाने जो है वो सुलह सफाई करवाई और अल्टीमेटली आके फिर मीडिया पे बयान दिया कि जी अगर कारी साहब ने कुछ किया होता तो हम मजलूम के साथ खड़े होते, कारी के साथ ना खड़े होते. चूंकि हुआ कुछ नहीं है और ये थोड़ी सी एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ. गलत फहमी, अंदाजा करें इन लोगों के बच्चों के साथ इस तरह हो तो फिर हम पूछेंगे ये गलत फहमी है, ये वाकई ऐसा हुआ है. Okay, so you peeked into the gutter. So I wanted you to see this. Okay, why did I show you this? अब ये भाई साहब खुद भी सालिसी करते हैं. ठीक है, कभी कभी इनके साथ भी कोई इस तरह का 2 हैंड हो जाए ना तो उनको पता लगेगा. लेकिन वैसे तो कोई इनको बुलाता है नहीं, इनको इतनी कोई इनकी रेपुटेशन है नहीं, ना इनकी कोई रीच है कि उनको कोई बुलाए सालिसी करने के लिए. लेकिन इन्होंने जो बकवास की है, I mean immediately without even has he even checked with the other side. पहली बात तो इनकी उन दोनों भाइयों के साथ दुश्मनी है. ठीक है, ये लोग ये साहब भी बेसिकली अहले हदीसी हुआ करते थे and he ended up going into his own direction. लेकिन the claims that he is making, no, he assumes कि जो भी FIR में लिखा है ये सच लिखा हुआ. मतलब there is no doubting that ये सच्ची कहानी है, ऐसे ही हुआ है. और ये लोग, ये जो मौलवी जो है ये ही कमीने हैं, ये अपने साथ अपने बंदों को बचाने की कोशिश करते हैं. तो he is from the get go he is trying to say कि यार फाउल प्ले हुआ यहाँ पे, just like everybody else. And I like to say कि ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है ना, ये हमारे सेकुलर और लिबरल्स को जो है ना, he is like an Islamic veneer for them. He gives them whatever they need
in a nice Islamic packaging. बहरहाल what happens, the 29th March को जो है वो जिरगा बैठता है, उसमें माफिया खिलाफी होती है. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये हो इसलिए रहा है कि ये जो बच्चे को जो बाप है, he doesn't want to be dinged by the system for raising a fake FIR, okay? And on the other side, they want to amicably solve this problem, because at the end of the day ये सारे उसी मोहल्ले के रहने वाले, तांलिया वाला के टाउन में रहने वाले सारे, they would have to live there. And imagine what would have happened if Abu Bakr Muawiyah was let go, बाइज़त बरी उनको कर दिया जाता है, वो बाहर निकलते हैं. What do you think he would have done with this guy? एक तो बैड ब्लड शुरू हो गया ना, सो एक हॉस्टिलिटी तो पैदा होती, स्पेशली अगर एक वुड हैव बीन प्रूवन कि ये फेक FIR है. एंड दैट्स वाई ये सालिसियाँ होती हैं कि ये सारी जो बैड ब्लड है या ये जो एनमिटीज़ हैं इसको ख़त्म की जाए और मामला थोड़ा बेहतर किया जाए ताकि लोग रह सकें आपस में साथ. अच्छा 29th को हो जाती है सारी चीज़ें, और फिर 28th या 29th को, वन ऑफ दीज डेट्स, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, और 30th को फिर होती है अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट. ओके, एंड आई वांट यू टू वॉच दिस, लुक एट दिस द मैजिस्ट्रेट्स डिस्चार्ज ऑर्डर. ये बेसिकली मैजिस्ट्रेट, फॉर दोज हू डोंट नो, लोअर कोर्ट है, एक ट्रायल कोर्ट होता है. बेसिकली हमारे सिस्टम में 3 लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं. एक ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है. यानी कि अगर जो भी डिसीजन लोअर कोर्ट देती है, अगर आपने इसको अपील करना है, फिर आपने हायर कोर्ट पर जाना है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है. ठीक है, तो ये है हायरार्की. तो ट्रायल कोर्ट में चला जाता है मामला, और ट्रायल कोर्ट फिर अपने डिसीजन में क्या देता है. लेट मी शो यू दैट नेक्स्ट. ओके, सो एज यू रीडिंग दिस ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट का नाम नीचे दिया भी है, नौमान ताहिर साहब, और यू कैन सी द डेट ऑफ देयर एज वेल. इट्स द 30th of March को ये हियरिंग होती है. और आई वांट टू स्ट्रेस कि ये हियरिंग हो रही है. ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई और हियरिंग में भी कौन है. बेसिकली इट इज़ यू कैन सी दैट राइट द बिगिनिंग. लोकल पुलिस हैव रिक्वेस्टेड फॉर फिजिकल रिमांड ऑफ अबव नेम्ड अक्यूज पर्सन. ठीक है, यानी कि अबू बकर मुआविया, यानी पुलिस चाह रही है कि इनको मज़ीद हम पकड़ के रखें. फिर वो जज साहब कहते हैं, एट दिस स्टेज कंप्लेनेंट ऑफ दिस केस, कंप्लेनेंट यानी बच्चे का बाप, along with minor victim, उसके बेटे का नाम तैयब, appeared before the court and submitted affidavit mark A and got recorded his statement. English भी अजीब, अल्लाह माफ़ करे. Got recorded his statement on the back side of the affidavit to the effect that he got registered instant FIR. ये क्या इंग्लिश है यार? On the basis of suspicion. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरे सामने पेश हुए हैं ये बाप और बेटा जो विक्टिम है, और इन्होंने अपने एफिडेविट में ये मेंशन किया है कि हमने जो FIR की थी वो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, यानी कि गलत फहमी या वहम कह लें. सस्पिशन की क्या होगी उर्दू इक्विवेलेंट. बेसिकली उस बेसिस पे हमने ये FIR लॉन्च किया था, यानी कि हम लोग श्योर नहीं थे लेकिन हमने कर दिया. जज गोज ऑन, present accused Abu Bakr Muawiyah is innocent and not involved in present occurrences. ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो अपना जजमेंट देते हैं कि ये जो है अबू बकर मुआविया इज़ इनोसेंट और ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एनी अकरेंस, यानी कि जो क्लेम किया गया FIR में ऐसा कुछ हुआ है नहीं. ठीक है, नाउ लुक एट व्हाट आई हैव अंडरलाइन इन रेड. लुक एट दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज सम पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि यार किसी ने क्या बच्चे का भी वर्जन ऑफ इवेंट्स लिया है, क्योंकि वो बच्चा तो नहीं था ना वहाँ पे, जिरगे में नहीं था, तो लेकिन कोर्ट के सामने तो है ना बच्चा वहाँ पे. अब देखिए जज साहब क्या कहते हैं. ऑन क्वेरी, माइनर विक्टिम ऑल्सो स्टेटेड दैट प्रेजेंट अक्यूज्ड इज इनोसेंट एंड डिड नॉट कमिट द ऑफेंस एज मेंशन्ड इन द FIR. यानी कि ये जो बच्चा है इसको माइनर कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है 12 साल का है वो, तो ही इज़ अ माइनर. अगेन अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेक, अ लॉट ऑफ दीज लिबरल्स टॉक अबाउट कंसेंट. ओके, ये FIR फाइल किसने की थी? बच्चे ने तो नहीं की थी ना, उसके बाप ने की थी फाइल. सो अगर जगह हुआ भी उसके बाप के साथ ही होना था, मतलब माइनर की बात, यू कैन नॉट नेगोशिएट विद अ माइनर, कैन यू? सो जो फाइल करेगा FIR उसी से आप नेगोशिएट करोगे ना. खैर,
तो हमारे ये मैजिस्ट्रेट साहब क्या कह रहे हैं कि मैंने इस बच्चे से खुद पूछा है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो बच्चे ने खुद कहा है मुझे कि ये जो प्रेजेंट एक्यूज है यानी कि अबू बकर मुआविया जो है, इसने मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं की जो एफआईआर में लिखी हुई है। ठीक है। Victim as well as complainant stated that they have no objection if above accused person is acquitted or discharged from this case। यानी कि वो मजीद कह रहे हैं जज साहब कि कंप्लेनेंट यानी कि ये बाप का ये जो बाप जो है और बेटा दोनों ये कह रहे हैं कि भाई उनको कोई मसला नहीं है, आप इनको डिस्चार्ज कर दें, कुछ हम इसको जाने के लिए हम इसमें राज़ी हैं। फिर वो कहते हैं hence there is no incriminating material available on record so the request वो कहते हैं कि वो अब इस केस में मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मज़ीद पुलिस को ये ग्रांट करूं कि आप इसको मज़ीद जेल में रखें और देर। ठीक है। तो मैं इस बुनियाद पे कि मुझे कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले कि मैं इसको मज़ीद रखूं जेल में, तो मैं इसको बरी करता हूँ। सो देयरफॉर रिक्वेस्ट ऑफ द IO to grant physical remand is not justifiable, and same is turned down, and above named accused person is discharged from this case. Accused person be released here forthwith if not required in any other case। यानी कि फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि मुझे कोई शवाहिद नहीं मिले और मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, तो मैं पुलिस की जो ये डिमांड है ऑफ कीपिंग हिम इन जेल फॉर लॉन्गर, मैं इसको रद्द करता हूँ और मैं इसको हुक्म दे रहा हूँ कि इसको डिस्चार्ज किया जाए, यानी कि जेल से इसको छोड़ा जाए। अब ज़रा आप इस चीज़ पे ज़रा फोकस करें। ठीक है। कि ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल नोवेयर इन दिस ऑर्डर, ये शॉर्ट सा ऑर्डर है, तकरीबन आधे पेज का ऑर्डर अगर आप इसको सही तरह पढ़ें। सो इसमें कोई ही डज़ नॉट इवन रेफरेंस द पंचायत, यानी कि पंचायत की फाइंडिंग क्या थी और नहीं थी वो तो इसको देखते ही नहीं है कि भाई आप लोगों ने जो वहाँ डिस्कस किया होगा, मैं आपसे वो अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाप से पूछा, उन्होंने बेटे से भी पूछा क्या तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, और उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा है कि नहीं हुआ। नाउ वंस दिस हैपेंस एंड द लोअर कोर्ट गिव्स यू अ डिसीजन, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ। अब आप इसको सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो अब लोग यही इसको आगे से सोच रहे हैं कि भाई ये तो पंचायत की वजह से वहाँ पे मामला सेटल हो गए थे, इसलिए कल उसने ये कर दिया और वो कर दिया। भाई ये आपकी अजम्पशन है, इट्स नॉट फैक्ट। यू आर अज्यूमिंग कि इट वाज डन ऑन प्रेशरिंग द फादर ऑफ द चाइल्ड, व्हिच इज एक्चुअली completely opposite to what happened. The father of the child called the panchayat, and Ibtisam Ilahi Zahir was called over to arbitrate. So it's not even, Ibtisam Ilahi is not even a player here. यानी कि अगर आप देखें वो इस hearing पे भी वो present नहीं है। अगर आप देखें right at the top over here, halfway down the first page, you can see who are present here. It's the accused person Abu Bakr Muawiyah, then the IO along with record, यानी कि IO is some police officer जो represent कर रहा है सिटी थाना को, victim minor वो बच्चा वहाँ पे है, complainant बाप मुदस्सर नज़र उसका नाम है, और learned ADPP for the state, I don't know who that is, but basically a state representative is there as well. So it has gone by the books. This is exactly what had to happen. ये पूरी due diligence follow की गई है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई ये चीज़ जो है वो जरगे में डिसाइड करती गई थी और ये तो आपने सिस्टम को बाईपास कर दिया, नो, द सिस्टम वाज नॉट बाईपास। यू कैन सी इट इन दिस ऑर्डर, दे हैव गॉन बाय द सिस्टम एंड द गाय हैज़ बीन एक्विटेड ऑन बिकॉज देयर इज नो evidence. A, there's no evidence. B, because the people who actually made the claim are taking back their claim. Okay, so ये है सारा मामला तांदिया वाला का। ये होता है Abu Bakr Muawiyah gets released either on the 31st of March or 1st of April, and then starts a new problem. अच्छा जी, तो अब Abu Bakr Muawiyah is out of jail. वो जेल से बाहर निकलते हैं और मौलवी फिर मौलवी है। सबसे पहला काम क्या करना है उन्होंने माइक पकड़ना है और उन्होंने रिकॉर्ड करना है, एंड ही रिकॉर्ड्स अ मैसेज बेसिकली। अच्छा, इसमें इन्होंने इफेक्ट्स भी डाले हुए हैं, वो जो कहते हैं एको इफेक्ट डाला हुआ है, बिकॉज यू नो अगेन मौलवी इज़ अ मौलवी है भी मुनाजराती टाइप मौलवी। तो वो क्या कहते हैं आप सुने।
हजरात चंद दिनों से सोशल मीडिया पर मेरे बारे में बहुत ज्यादा बकवासात की जा रही हैं और जुबान दराजी की जा रही है। मेरे नाम की वजह से अबू बकर सिद्दीक मुआविया, नाम मुआविया की वजह से इस बात को मजहबी रंग दिया जा रहा है। मुझे 13 दिन हवालात के अंदर नाजायज बंद किया गया। उस बच्चे के बाप को बार बार कहा जाता रहा कि इसका मेडिकल करवाओ। उस बच्चे का बाप ये कहता रहा कि हम मेडिकल नहीं करवाएंगे। मैंने कहा मेरा मेडिकल करवाएं। मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ। क्यों? बात ही कुछ नहीं है। मैंने उस बंदे को हलफ दिया और कल मैं अल्लामा साहब के पास बैठा था। मैंने उन्हें कहा मैं इत्मीनान कल्ब के लिए कुरान पाक पर हाथ रख के कहता हूं कि मैंने उस बच्चे के साथ बदकारी नहीं की। सरासर ये रीप्लान प्रोपेगेंडा सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि मैं जगह जगह पे सहाबा करता हूं। मैं अपने जर्नल साहब हाफिज मुनीर अहमद साहब, हाफिज आसम मुनीर साहब, उनसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह की रजा के लिए इन लोगों को पता डालिए ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं आप अहबाब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर मुझे अब किसी तरीके से तंग करने की कोशिश की गई तो मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से अपना दिफा करूंगा। जब तक मेरे खून का आखिरी कतरा बाकी है, खून के हर कतरे से इंशाअल्लाह सहाबा और अहले बैत की आवाज आती रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देते हैं और इन अ वे एक धमकी मारते हैं कि मैं अब कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई करेगा तो मैं फलाना करूँगा, ढिमकाना करूँगा। बाय द वे, आपने अगर इनकी पुरानी वीडियो देखी थी जब ये पुलिस वाले के सामने खड़े हुए थे तो किस तरह इंसान के बच्चे बन के खड़े हुए थे। उस वक्त उनकी सारी जो गीदड़ सिंगी थी सारी गायब थी। लेकिन यहाँ पे जब बिकॉज यू कैन सिट, यू कैन एक्ट ऑफ, इधर ऑनलाइन बैठ के इन्होंने भपकियाँ मारना शुरू कर दी दोबारा से। इनको अकल तो है नहीं मौलवी लोगों को समटाइम्स। तो आ बैल मुझे मार वाली सीन। तो एक तो उन्होंने ये दे दिया, फिर उन्होंने किसी से मिले, मेरे ख्याल से ये इब्तिसाम साहब से दोबारा मिलते हैं और ये उनके साथ उनकी तशफ़ी के लिए वो कुरान पे हाथ डाल के ये भी कहते हैं कि जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो क्या कहते हैं आप सुने ज़रा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इनकी तस्कीन कल्ब के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए ये कुरान पाक है और इस पे हाथ रख के कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कसम उस बच्चे के साथ मैंने बदकारी की। ये सब झूठ है कि कपड़े उतारे गए, फलां किया गया। वो बच्चा खड़ा रहा है मेरे पास। इससे बड़ी ये अजान भी हो रही है, इससे बड़ी मेरे पास कोई दलील नहीं है और इससे बड़ी मेरे पास कोई गवाही भी नहीं है। आप भी को ना माने, मुझे कोई टेंशन नहीं, बुलाए ना बुलाए, ये अल्लाह का मामला, मेरा कोई कारोबार नहीं है ये। ओके, सो यू हैव सीन कि वो किस तरह एक ओथ भी दे देते हैं कि भाई मेरे खिलाफ जो भी बातें कही गई हैं सब झूठ है। लेकिन अब वो कि जेल से बाहर हैं वो, तो जाहिर सी बात है लोगों में एक ऑलरेडी इतनी सारी स्टोरीज आती जा रही हैं ऑफ मौलवी अब्यूज़ विद चिल्ड्रन, सेक्सुअल असॉल्ट और जान से मार देना, थिंग्स लाइक दैट। एंड आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स आर ऑलरेडी ऑनलाइन कि ये हो गया, अरे ये हम तो पहले कह रहे थे कि स्टेट का मौलवी है, स्टेट इसको बचा लेगी। दोबारा से सारा प्रोपेगेंडा शुरू होता है। भाई साहब ने भी बैठ के ऑलरेडी भगवियाँ मारना शुरू कर दी हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा और मैं अपने लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड तक आई एम गोना डिफेंड माई सेल्फ, विच काइंड ऑफ पीपल कैन गिव दैट द शेड के उसको इसका रंग दे दें कि भाई ये कह रहा है कि मैं गोली मारनी चुप पड़ी तो मैं इस पर भी आमादा हूँ। तो ये सब कहते हैं और फिर एक चीज़ शुरू होती है, ठीक है। अनअवेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल, अबू बकर मुआविया इज़ पिक्ड अप बाय द एजेंसीज। ओके, अब जब मैंने ये ट्वीट किया था, बाय द वे अभी आप देखेंगे, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। इट्स दी 1-5 की जो रिपोर्ट दर्ज की थी इनके फैमिली ने अबू बकर मुआविया की, भाई कि हमारे बेटे को उठा के लेके गया। उनका जो भाई है फैसल, वो ये बेसिकली उसने कॉल करता है 1-5 को एंड वो वहाँ पे जो है कंप्लेन करता है कि हमारे घर पे लोग आए हैं। ये 6 अप्रैल की बात है। 6 अप्रैल सुबह के तकरीबन फजर के टाइम का वक्त है। 4:15 को उसको घर से उठा के ले जाते हैं। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ क्लेम, ओके। तो आई वांटेड टू शो यू द वीडियो ऑफ them abducting this guy.
So just watch the video, and I want you to watch the video very carefully, because बिल्कुल वीडियो के शुरू में आप देखेंगे काली गाड़ी, जो मैं बाद में आपको जब 15 की जो रिपोर्ट दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यही चीज़ें बताई गई हैं कि उस गाड़ी का कलर क्या है, वो कैसी गाड़ी है, और गाड़ी में कौन लोग बैठे थे, या जो घर के अंदर आए वो कितने लोग थे, कितने पुलिस वाले थे, कितने रेगुलर क्लोथ्स वाले थे, और रेगुलर क्लोथ्स वाले आर्म थे कि नहीं थे, वो सारी डिटेल्स उसने उस रिपोर्ट पे दी हुई है. सो जस्ट वॉच दिस एंड आई जस्ट वांट यू टू नोटिस कि जब ये गाड़ी खड़ी हुई होगी तो एक सामने से एक और गाड़ी हो रही है जिसके बिकॉज दिस वीडियो इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, यू कैन रियली टेल, और रात का भी वक्त है, you can't really see a lot over here, but what you can see when the other car is coming from the other side, तो उस गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं वो उसको पॉइंट करती हैं, और आप ज़रा व्हील्स पे आप ज़रा फोकस रखिएगा कि फ्रंट व्हील जो है वो एक रेगुलर व्हील है, और जो बैक व्हील है वो एक्चुअली एक स्टेपनी व्हील है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन आई शो यू अदर वीडियोज यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस कार. So as you can see, this car first is, they show it parked in front of his house, और वो दूसरी तरफ फेस कर रही है, और आफ्टर अ लिटिल वाइल वो आगे जाती है गाड़ी. पहले सबसे पहले तो आप देखते हैं वो जो गाड़ी सामने से आ रही होती है उसकी हेडलाइट्स पड़ती है, तो यू प्रॉब्ली नोटिस के पीछे वाला टायर जो है वो स्टेप नहीं लगा हुआ है. फिर ये गाड़ी जाती है आगे और टर्न करके दोबारा आती है वापस इस सड़क पे, और थोड़ा आगे जाके वो पार्क हो जाती है. ठीक है, और फिर कुछ and I've skipped this video because obviously there's a lot of time elapsed. I didn't want to show you the entire 8 minutes of the video. What you see basically कि लोग गाड़ी से निकलते हैं और घर के अंदर जाते हैं, फिर एकदम से एक flurry of people coming out of the house, and then वो उसको गाड़ी में बिठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं. ठीक है, तो ये आपने देख ली वीडियो पहली. अब यही सिर्फ वीडियो नहीं है, यही अगर वीडियो होती तो यू कुड हैव क्वेश्चन कि यार ये बहुत ग्रेनी वीडियो है, यू कैन रियली टेल, आप इसकी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, कौन लोग हैं, ये क्या इसका ही घर है, इसमें GPS लोकेशन तो है नहीं कि तो क्या इज़ इट रियली हिम. सो ओके, आई विल शो यू अ मच मोर क्लियर वीडियो. 3 बंदे पुलिस वाले ने नमाज नहीं पढ़ी, वैसे पेशाब शूब करना है.
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਵੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ पिस्टल ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਈ बस ठीक है कर लेंगे। ओके जी, तो आपने वीडियो देख ली। तो इसमें आप सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक तो आप इसका टाइम स्टैम्प देखें 6th of April 4:50 फाउंड अबाउट 4:50 AM, यानी कि 4:15 को घर से उठाए जाते हैं और फिर इनको ये सामने वाला कोई क्लोज बाय एक पंप है जिसका नाम ये बता रहे जूम पंप है। इस पंप के अंदर जो बंदे लोग काम करने वाले, ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अबू बकर माविया इज़ अ वेल नोन पर्सन अमंगस्ट दिस कम्युनिटी एंड अमंगस्ट द स्ट्राटा हु बेसिकली फॉलो ये रिलीजियस फॉलोइंग भी होती है ना इन लोगों की, because of the work he does, because of the things he says online, it's very exciting for a lot of people. So the guys they recognize him कि यार ये तो अबू बकर माविया बैठा है गाड़ी में। तो someone leaked this video, I get my hands on it. First thing that you notice besides the timestamp is you see that stepney, ठीक है, ये उसी साइड है ऑफ द कार। जब आगे से एक और ट्रक थी या जो भी थी लॉरी आ रही थी, उसकी हेडलाइट्स पड़ती है एंड यू कैन क्लियरली सी कि आगे का जो व्हील है वो इट्स अ रेगुलर व्हील ऑफ द कार एंड द बैक व्हील इज द स्टेपनी, सो दिस इज द सेम कार, ओके। एंड you then also see that there are three policemen in Punjab police clothes. One guy who's wearing an orange shalwar kameez, it looks like a shalwar kameez, और उन्होंने अपने साथ उसको हथकड़ी पहनाई हुई है अबू बकर माविया को। When Abu Bakr Muawiyah steps out of the car, and in this video you can see him clearly. It's a color video, very clear pictures, and you can even hear the guys narrating the story from the control room. Then you also see the guy in the white dress. The white dress he has, or the white shalwar kameez, and he's armed. He has a pistol with him, as you hear the other guys talking. So basically होता ये यहाँ पे रुकते हैं for whatever, maybe for nature stop या जो भी है, अपना काम करते हैं और फिर निकल जाते हैं। मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा रहा, पूरी वीडियो भी तकरीबन साढ़े 6 मिनट की वीडियो है। मैंने आपको सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे वही दिखाएँ, लेकिन you can see clearly that he was abducted on the 6th of April and he was taken back to jail, ठीक है। ये हो गया मामला। इनको पंप से कॉन्फर्मेशन आ गई कि यार इनको उस दिन उठाया गया था। नाउ वी कम टू द शादरा केस। अब जब ये सब कुछ हो गया और अगर आप मेरी टाइमलाइन देखें तो इनको अपडेट किया जाता है ऑन द 6th of April at 4:15 AM and I tweet around Pakistani time, give or take 7 o'clock or 8 o'clock PM, giving the news कि यार इनको अपडेट कर दिया गया, because my sources by then they send it to me. मेरे उस वक्त शायद सुबह के 10 बज रहे थे। I wake up, I look at my messages and I'm like, okay, ये नई डेवलपमेंट हो गई है कि यार इसको एजेंसीज वाले उठा के ले गए। well, I won't say agencies because you can clearly see पंजाब पुलिस वाले थे। उसको उठा के ले जाते हैं। मैं ट्वीट करता हूँ ये, it goes unnoticed because obviously no one wants to defend Abu Bakr Muawiyah. वो तो मौलवी है, मौलवी तो सारे होते ही कमीने, you know. So the people who normally RT me or like my tweets, dead silence, pin drop silence, because no one wants to be seen as rape apologist. So now let me just show you what was filed by the family. So what I'm showing you now basically is the जो 115 पे जो रिपोर्ट की गई थी। पहले तो मेरे पास कॉल लॉग्स भी हैं, वो अभी मैं फ़िलहाल शेयर नहीं करूँगा because I don't want to share call logs at this point in time. लेकिन अगर आप ये पढ़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त,
वो बिल्कुल आपको यही एग्जैक्ट टाइमिंग बताते हैं, वही सेम 4:15 का टाइम जो आपने देखा भी था वहाँ CCTV में लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट लिखी जाती है बाय द वे अगली सुबह को, रिपोर्ट लिखी जाती है ऑन वेयर एवर दिस इज, मैं अभी भूल गया कि मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा स्टेशन था ये, बट इफ़ यू रीड दिस SHO साहब थाना वॉरबर्टन, सो वॉरबर्टन पे के ज़िले में ज़िला नानकाना साहब में ये वहाँ पे एक वॉरबर्टन थाना है, उस वहाँ पे ये फ़ाइल किया जाता है कि भाई हमारे भाई को उठा के ये लोग ले गए और लोग ये थे, इतने सारे थे, ये पहने हुए थे और उनकी गाड़ी का नंबर भी दिया हुआ है LEL 4073, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ डिटेल्स गिवन, दे ऑल्सो मेंशन कि यार हमारे CCTV पे इसका प्रूफ है। सो एवरीथिंग इज़ लॉग्ड, वेरी नाइसली डन, covers the trails. Okay, so we have established beyond a reason of doubt कि अबू बकर माविया को 6 अप्रैल at around 4:15 AM he is abducted by पंजाब पुलिस। अब आती है कहानी में एक नई ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है? एक नई FIR फाइल की जाती है, दिस टाइम इन शादरा लाहौर, ठीक है। आई एम शोइंग यू द FIR राइट नाउ। और FIR में आप नोटिस करेंगे कि 7 अप्रैल जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 7 अप्रैल 3 AM यानी कि सुबह सवेरे ये क्राइम यहाँ पे रिपोर्ट होता है, या होता है, नॉट रिपोर्ट होता है लेकिन ये क्राइम होता है यहाँ पे, बखूब पजीर होता है दिस टाइम। एंड अगेन नोटिस दिस द सेक्शन देर नाउ कोटिंग, सेक्शन 511 को कोट नहीं करते इस बार ये लोग सिर्फ 376 को कोट करते हैं और सेक्शन 376/3 यानी कि क्लॉज नंबर 3। ये क्यों करते हैं? बिकॉज लास्ट टाइम इन्होंने समझ लिया था, अब इनको बेसिकली ये इन टुल्लों को ना, ये पुलिस वालों को ऊपर से प्रेशर आया हुआ है, मरीम नवाज़ ने और सेनेटर्स ने और फलाना ढिमकाना ने, मतलब आपको याद भी होगा वही पटेल साहब जो हैं आप पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ऑन द फ्लोर ववेला मचा दिया था कि यार ये होगा और वो होगा, इसको तो हम लोग वो बनाएंगे, एक एग्जाम्पल बनाएंगे। एवरीवन हैज़ अज्यूम्ड दिस गाइज गिल्ट, ओके। तो जब ऊपर से जब प्रेशर आना शुरू होता है तो ये टुल्ले क्या करेंगे? इनको तो दिखाना ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी दिस हैपन ऑन द 6th of April, ठीक है। 3rd या 4th अप्रैल को ऑलरेडी IG को रिपोर्ट जा चुकी थी कि फ्रॉम द सिटी थाना इन तांगलियावाला कि यार ऑल इज़ क्लियर। हमने जितने लोगों से भी बात की और जब ये रिपोर्ट आएगी सामने, अगर आई कभी सामने, तो आप देखेंगे कि लोगों ने भी वहाँ पे गवाहियाँ दी हुई हैं कि, एंड लाइक आई टोल्ड यू नो आई कैन शेयर सम ऑफ दिस डिटेल्स नाउ बिकॉज इट विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग द इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन at some point in time maybe I will release some of this information. Like I said, you know, clean up your mess or we have no other option. Okay, आप लोगों को इस तरह, because you know आज तो ये मौलवी आपको पसंद नहीं है ना, कल आपके ख़िलाफ़ ये करना शुरू कर देंगे पुलिस वाले, तो आप क्या करेंगे? ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि यार फलाना लोगों के ख़िलाफ़ गलत FIR कटी थी। अभी एक बंदे को उन्होंने रिलीज़ किया है मिलिट्री कोर्ट्स ने, बिकॉज ही 9 या 10 महीने बाद इस बंदे को रिलीज़ किया है। वो वहाँ बैठ के बस वीडियोस ले रहा था, 9 मई की बात कर रहा हूँ मैं, 9 मई 2023 को उठा के फेंक दिया उसको जेल में। यार वही तो ना, मतलब बंदा वहाँ पे बस वहाँ पे ही हैड द मिसफॉर्च्यून ऑफ बीइंग देयर। ही इज़ नॉट इवन लाइक, मे बी ही इज़ नॉट इवन अ PTI सपोर्टर, इन फैक्ट ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। वो वहाँ पे सिर्फ वीडियो ले रहा था। वो उसने अपनी डिटेल्स ही बताया कि मैं क्यों वीडियो ले रहा था, बिकॉज एज पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ही इज़ सपोज टू बी मॉनिटरिंग दीज थिंग्स। खैर दैट्स अ डाइग्रेशन। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ये कल हमारे साथ भी हो सकता है। इट कैन हैपन टू एनीवन, इन फैक्ट इट्स ऑलरेडी हैपन टू मी। मेरे खिलाफ एक फेक FIR खड़ी की गई थी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, इन फैक्ट इन वन ऑफ माई एपिसोड्स आई विल बी गेटिंग अ फ्रेंड ऑन माई शो बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू hell. Now he's moved out of Pakistan. लेकिन I want to show his story and give you the examples of how fake FIRs are lodged and they are so laughable. यानी कि आप वो कहानी पढ़ेंगे तो कहानी से पता चलता है ये चुस मार रहे हैं लोग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल just park that to the side for now. Come back to the story. 376 इस बार वो लोग सेक्शन को इन्वोक करते हैं, इस बार 511 को नहीं करते बिकॉज दे वांट टू पिन दिस गाय डाउन
बिकॉज ऊपर से प्रेशर है कि नहीं इसको एग्जाम्पल बनाना है, कुछ भी करो इसको एग्जाम्पल बनाओ. सो दे कम अप दिस स्टोरी. और अगर आप इसको पूरी पढ़ें इस FIR को, मैंने तो कुछ चीज़ें रिडैक्ट की हुई हैं यहाँ पे, लेकिन बच्चे का नाम भी आप देखें, ये माशाल्लाह जो भी है ना, ऊपर से जो भी कर रहा है, यू नो देर आर अ फ्यू थियोरीज दैट आई हैव एंड आई डोंट वांट टू वर्बलाइज देम राइट नाउ. लेकिन ऊपर कोई बैठा हुआ है जो यू नो एक कैंपेन चला रहा है विद ऑल दीज अदर गाइज ऑनलाइन. नाम भी रखा है देखिए, क्योंकि नाउ इट इज इस्टेब्लिश बियॉन्ड डाउट कि यार देखिए ये 7 अप्रैल की सुबह को हो रहा है, यानी कि 24 घंटे के बाद जब इन्होंने इसको अबडक्ट कर लिया है, बंदा जेल में बैठा हुआ है. वाइल इज इन जेल, पता नहीं ये कौन से सूफी साहब हैं, ये उड़ के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं. मैं ये मंदरजाल बता रहा हूँ आपको मैं FIR की, कि ये पाए जाते हैं एक कब्रिस्तान में, जहाँ पे ये एक दूसरे बच्चे के साथ, ठरक इतनी थी ना इनको कि अभी जेल से निकले तो ठरक तो निकालनी है, और बस हम लोग ने अल्फ लैला की कहानी तो हमने बिलीव करनी है, यू नो, बिकॉज मौलवी है, मौलवी तो है कमीना, तो उसके खिलाफ आप जितना भी यू नो व्हाटएवर यू थ्रो एट हिम विल स्टिक. सो कहानी ये आती है कि भाई इस बंदे ने एक बच्चे को, इन्होंने नाम भी बच्चे का सुफियान, अगर आप देखें, यू नो, इफ़ यू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ दी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, मुआविया having sex with Sufyan, you know, if you understand, Abu Sufyan basically was the father of Hazrat Muawiyah. तो ये यहाँ से सारी you know मज़े ले रहे हैं, चस्के ले रहे हैं ये लोग. You know, you can, when you read these FIRs, you understand what the hell is going on. Okay, so already, like I said, we've already established the guy sitting in jail. He's rotting in jail. There's no way he's in a Qabristan right now. Pardon my French, fucking a little boy. Okay, but just listen to what they say. They say that this kid, 9-year-old or 10 years old, सुफियान नाम है बच्चे का, इसको बाप भेजता है सुबह सवेरे 3 बजे कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए फॉर सहरी. अब पता नहीं कौन सा बाप अपने बच्चे को सुबह 3 बजे भेजता है, लेकिन चलो मान लेते हैं. वो जाता है बाहर ग्रोसरीज लेने के लिए, तो वो वापस नहीं आता है, सेम एज लास्ट टाइम. तो भाई साहब निकलते हैं बाहर, ढूंढते ढूंढते निकलते हैं, तो वो देखते हैं एक झमेला इकट्ठा हुआ है कब्रिस्तान के पास. तो वहाँ पर जाते हैं तो उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आती है. देखते हैं कि वो बच्चा जो है वहाँ पे वही अगेन नंगा है और फलाना ढिमकाना है. तो लोग को वहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने किसी मौलवी को जो है वो घेरा हुआ है, और इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है. फिर पुलिस उसको उठा के ले जाती है, और लोग फिर बाद में इनको बताते हैं कि ये अबू बकर मुआविया है. ठीक है, और वहाँ पे जो वकूआ है, वहाँ पे उनको शलवार भी मिलती है जिसके ऊपर खून होता है, और यानी बच्चे की जो पैंट्स है वो उसमें खून होता है, और डर्ट मला हुआ है, बिकॉज ऐसी बात है वो ज़मीन पे है, तो ये सब हुआ हुआ है. और मौलवी साहब भी इनको नंगे पाए जाते हैं, तो मौलवी साहब की शलवार भी इनके हाथ लग जाती है. ये है नई कहानी, नया ट्विस्ट आया है पूरी कहानी में. ठीक है, तो अब ये फाइल की जाती है रिपोर्ट, अगर आप देखें ऑन द 8th of April at 8 AM. ठीक है, 8 अप्रैल को ये फाइल की जाती है रिपोर्ट, और ये क्राइम होता है 7th अप्रैल को at 3 o'clock in the morning, almost 24 hours after they've already abducted this guy who's sitting and rotting in jail. Okay, now जब ये कहानी बाहर निकलती है ऑनलाइन, जब आती है, तो इमीडिएटली बेल्स गो ऑफ. ठीक है, ये जो सारे जो बैठे हुए ना वो ग्रिफ्टर्स, जिनका काम ही है कि यार दूसरे के मौलवियों की सारी स्टोरी बनाओ, सो दे स्टार्ट नाउ पैनिकिंग, यार ये क्या हो गया. तो सबसे पहला उनका नी जर्क रिएक्शन आता है कि यार नहीं, ये कोई और अबू बकर मुआविया है. शादरा लाहौर में एक और अबू बकर मुआविया होता है. अच्छा, इसमें सारे चस्के भी ले रहे हैं इन द मीन टाइम. अरे ये तो इस तो नाम में ही फॉल्ट है, जितने अबू बकर मुआविया थे, ये कोई नाम ही में कोई मसला है कि जो सारे जो बच्चे बाज निकलते हैं सारे. ठीक है, अब अपनी वो बोगस भी तो निकालना, अपना तबर्रा करना, वो भी खुद आखिरी अशरे में रमदान के एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा सबको. तो एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप ट्वीट देखें. ही इज़ नॉट द ओनली वन, देयर मैनी पीपल लाइक हिम, but he makes a claim, very bold claim. Again, you know, these people don't check anything, they just make claims. You know, who cares? You know, you can just pull anything out of your ass. हम लोग कहते हैं ना, in our costing world we call it puma, pulled out of my ass. You can literally just say, okay, I don't know how to back my theory, but I think this is what it is. So we call that pulling out of my ass. So
ये कहते हैं कि भाई ये जो he says FIR of a rape case in Lahore against another Qari Abu Bakr Muawiyah who raped a 9-year-old kid in a graveyard during Sehri. This is not the same Abu Bakr Muawiyah as people are claiming. Very, very bold claim. By the way, he has not deleted the tweet because even after the facts have come out, he has not deleted that. As of now, as of my recording, he hasn't deleted this tweet because again, like that other guy, जिसको मैंने आपको tweet दिखाती of Saeed Muzammil, that's not how propaganda works. You know, the whole point is कि यार आप अपने tribe में फंसे रहते हैं. You actually won't even see. आपने तो already बाकी जिनसे आप agree नहीं करते, आपने उनको block किया या उन्होंने आपको block किया हुआ है. So you will not even see their side of the story. Okay. So this guy makes a claim and now everybody's like, oh ठीक है, सब लोग ना आके मुझको करना शुरू कर दिया कि यार साहब तुमने जो किया है कि अबू बकर मुआविया जो है ये जो 7 अप्रैल को का जो वाक़या है ये वही अबू बकर तुम कह रहे हो, लेकिन ये वो वाला अबू बकर नहीं है. देखो शहजान मैंगो ये कह रहा है, जैसे शहजान मैंगो बहुत बड़ा कोई फन्ने खान बैठा हुआ है यहाँ पे. Anyways, he makes this claim and then immediately God sent and this is the tweet I want to show you is Aisha Raza Farooq. Okay, she's a PMLN senator. She says, and she's also, if you go to her profile, human rights ki chairman hai in the parliament or whatever it is. And God help us if these guys are human rights ki champions, okay, who do not even do basic fact checking. Matlab, I'm sure it's not her fault. Someone is giving her a report. Inke juniors ne inko report di aur, again, as a manager of people, you're supposed to have at least some level of, managerial capability to fact check them. Yeah, you just don't buy the reports that your, people who are under you are giving to you. You have to push back and ask them, "Ki aap ye claim kar rahe hain, how can you back this up? I found falana thing from falana source. How can you justify that?" Nahi, ye sab nahi karna. It's too easy, na. या फिर मे बी शी इज़ लाइक इन पार्ट ऑफ दैट ट्राइब दैट डजंट बिलीव इन ऑल दिस स्टफ. मौलवी है तो मौलवी को तो फंसाना है, ऊपर से भी हमको प्रेशर आया हुआ है कि उसको फंसाओ किस तरीके से. तो बहन जी क्या लिखती है अपडेट इन चाइल्ड अब्यूज केस #Lahore #Faisalabad. Immediately off the bat she's saying this Abu Bakr Siddiq Muawiyah has been arrested in criminal case number 2441/24. ये वही केस है. Again, she states the date and also the section invoked. Okay, so she, as a senator of Pakistan, is confirming that this is the same Abu Bakr Muawiyah who was in the case of Tanviawala. ठीक है? Then she goes on to thank official, basically the Punjab police, the IG police and things like that. And then she even tags NCRC Pakistan, which is basically, I think it's the Human Rights Commission or whatever it is that she chairs, or what I think she chairs that. Now just imagine the competency. Okay, I don't want to call it complicity, okay, because that'll be a claim that I'm making, which I can't justify because मैं दिल खोल के तो देख नहीं सकता कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है और कहाँ नहीं. लेकिन कॉम्पिटेंसी पे तो मैं बात कर सकता हूँ ना, कि आपने थोड़ा सा भी बेसिक फैक्ट चेक नहीं किया यार कि ये बंदा, आप अपने पुलिस से ही पूछ लेते हैं यार कि वो जेल में बैठा हुआ है. हाउ द हेल कुड यू डन दिस? आपने एक झूठ बोला है, उस झूठ को कवर अप करने के लिए और एक बलि का बकरा आप लोगों को चाहिए. बिकॉज जिस तरह हमारे मौलवी हजरात है ना, 295 का केस आता है ना, तो उनको बस सारी उनकी जो रीजनिंग है बंद हो जाती है. दे जस्ट वॉन्ट ब्लड. उनको जब तक आप वो बलि का बकरा नहीं देंगे, उनके गॉड्स हैप्पी नहीं होंगे. ओके, दिस इज द सेम थिंग विद दैट्स हैपनिंग हियर. सो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ यार तुम लोग बैठ के 295C में इतने लोगों को बेगुनाह मार दिया और ये कर दिया. भाई आपने कभी हमारा लीगल सिस्टम देखा है? कौन कौन से सेक्शंस को अब्यूज़ किया जाता है? अब क्योंकि इसमें अब आप सोचें अगर अबू बकर मुआविया को इस पर फांसी हो जाती है तो हम क्या प्रूव करेंगे इससे कि यार रेप लॉज आर बैड फॉर पाकिस्तान, वी शुड रिपील देम? इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द लॉ. The problem is with the system itself at the very lowest layer, जहाँ पे टुल्ले जो हैं ये, एक तो वो लोग from the get go पागल से FIR वो लोग काटते हैं और फिर बाद में जब मामला बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक एस्केलेट हो जाता है तो उनको पुश किया जाता है to get things done in a specific way. फिर वो लोग basically अपने bosses को खुश करने के लिए they have to do whatever it takes. Okay?
So, Aisha Raza Farouk, get your act together, okay? Don't embarrass yourself. You are a senator and you sit in one of the most august houses, institutions in Pakistan, the highest one, the parliament. Next thing I want to show you is, as soon as this happens, Rai Saqib Kharal Saab, he's a journalist, he puts out this tweet that says, Abu Bakr Muawiya ने मारूफ कानूनदान मियाँ दाऊद की खिदमात हासिल कर ली. इस केस के मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात थोड़ी देर में मियाँ दाऊद के इंटरव्यू में. And he quote tweets Aisha Raza Farouk. Okay, I'm glad someone's taking her on because this is not on. आप किसी भी लॉबी के लिए या किसी क्वार्टर के लिए, किसी ट्राइब के लिए, you can't go around targeting people and just to please them, their gods, you have to have the sacrifice. क्यों भाई? क्यों आपको बलि का बकरा चाहिए? Like I said in the beginning of the show, I am not the type of person who likes taking sides. Okay, I'm the kind of person, and everyone, in fact, legislators are supposed to be number one at the top over here. Do not take sides. Go where the evidence leads you. वो चाहे लेफ्ट पे हो, चाहे राइट पे हो या सेंटर पे हो, but you have to follow the law. Okay, don't try to assume कि यार oh we missed him over there, तो हम अब एक गलत केस बना के इसको फंसा देते हैं क्योंकि हम पहले उसको पिन डाउन नहीं कर सके, तो अब जायज़ है हम इसको, क्योंकि वहाँ पे उसने हरामपंथी करके बच के निकल गया साइड से, तो हम अब इसको ज़बरदस्ती एक केस बना के इसको पिन डाउन करेंगे. You have actually embarrassed yourself. Even if there was any truth in the first FIR, you have now screwed it up with the second one. This is your level of competency. If I were you, Aisha Raza Farouk, I would be really embarrassed. यार मैंने इतनी बड़ी चुस मार दी. Are you really helping these kids? You're part of that whole child safety net that you're chairing that, whatever it is. I mean, is this the level of competency that you have? Is this how you're going to protect kids? By fake FIRs and you're just diluting जो मामलात हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं. यानी कि अब आप सोचें, आप लोग ने, you have sent out this request to convene a meeting of the parliament to sit down and discuss Madaris reforms, and I certainly support that. Okay, I support Madaris reforms. मैंने एक idea भी दिया है. I tagged Maryam Nawaz and some of her secretaries, recommending what to do to stop this, because obviously there is an endemic going on. There is a problem. We need to address it. लेकिन यार इस तरह झूठ बोल रहे हैं आप लोग यार. यानी कि अगर आप सोचें कि जब आप इस मुंह से आप जाएंगे मौलवियों के पास कि यार हम आपके फलाना मदारिस में ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, वो आपको मानेंगे? अब जो भी कहें उनके सामने कि यार 10,000 केस ऐसे हो गए, चलो एक में ये हो गया, लेकिन दे विल सी बैड ब्लड, दे विल सी बैड इंटेंट. वो क्यों आपकी बात मानेंगे? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू वांट टू हेल्प पीपल, if you really care about Madaris reforms, then show them that you mean well. Don't just go around trashing these people and then also expecting them to toe your line. They won't. Anyway, Saqib Rai Kharal then does this interview with him, and you can go to his channel and watch it. But there's just one part of this that I want to show you. उसके बाद फिर इनको शाहजहां थाने लेके आए. ठीक है. शाहजहां थाने में लाके मुद्दम कहता है कि फिर पुलिस वाले इकट्ठे हुए और वो मेरे लिए ख्वाजा सरा लेके आए. वो 27वीं की तारीख बनती है, अबू बकर मौलवी साहब कहते हैं, और मुझे इन्होंने तशद्दुद करके कहा कि तुम इसके साथ ज्यादती करो, हमने तुम्हारी वीडियो बनानी है और एविडेंस क्रिएट कर, बदतमीजी करो, हमने इसकी वीडियो क्रिएट करनी है. मुद्दम कह रहा है. मुद्दम ने इनको सारा इनकार किया, इनको रेजिस्ट किया और इनको वास्ता दिया कि यार आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं. मेरा ना तो पहले वाला इशू जेन्युइन था और ना ये वाला मेरे पे इशू जो है वो जेन्युइन बना रहे हैं, लेकिन उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन फिर भी उसने रेजिस्ट किया. उसके बाद मुंदम कहता है कि थोड़ी देर के बाद एक औरत लेके आए हैं पुलिस वाले और उनको कहा कि इसके साथ करो तुम. ये थाने के अंदर आपको पता है यहाँ पे हमारे बहुत सारे टॉर्चर चल रहे हैं, पुलिस आके ऑपरेट कर रही है. फिर मुंदम का ये कहना है कि जब मैंने उससे भी इंतजार किया तो फिर उन्होंने इसको नशावर कोई चीज पिलाई है, नशावर चीज पिलाई है और वो भी जबरदस्ती पिलाई है. उसके बाद वो बेहोश हुआ है और नींद मदहोश हुआ है. उस नींद मदहोश होने के बाद फिर उसको जो उसको याद पड़ता है बेहोशी में, क्योंकि 2-3-4 बंदे जो है उसके जिस्म के साथ नोचा नोची करते रहे हैं, उसका बकायदा जो स्पर्म्स है उसको रिलीज करवाया गया, उसके स्पर्म्स निकाले गए हैं, उसको फिर क्या उसे कहते हैं डब्बी में बंद किया गया. डब्बी लेने के बाद फिर वो कहते हैं कि अब
नेचुरली ये अगला बतौर वकील मेरा अंदाजा है कि वो स्पंज जो है वो बच्चे के कपड़े पे लगाए गए होंगे, इसकी शिकार पे लगाए गए होंगे ताकि ये एविडेंस क्रिएट हो। लेकिन एफआईआर के अंदर बच्चे के ब्लड का जिक्र भी है। ये एफआईआर के अंदर ये इल्जाम है, बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। अब ये इल्जाम प्रोसिक्यूशन कितना साबित कर सकेगी ये अब ट्रायल कोर्ट में देखेंगे, लेकिन मुलजिम का ये मौकफ जो है ये बड़ा खौफनाक मौकफ है। आप अगर Oof. So you just heard that. I mean, just imagine the level of absurdity. Achha, before I comment on this, I just want you to see a little short clip too. I know that this is not the Punjab police. मैं जो आपको clip दिखा रहा हूँ ये इस्लामाबाद पुलिस की है, लेकिन ज़रा इनकी बातें सुने आप, ठीक है? Then I'll come back to what I wanted to say. हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्राइम फाइटिंग है और लोगों की जान माल और इज़्ज़त की प्रोटेक्शन है, और हमारा गैर ज़रूरी किसी चीज़ की तरफ फोकस नहीं होना चाहिए। आई मस्ट रिपीट कि हमारा गैर ज़रूरी किसी चीज़ पे फोकस बिल्कुल नज़र ना आए। हमारा सिर्फ काम है लोगों की जान माल और इज़्ज़त की प्रोटेक्शन। कोई निकाना में तलब करना, मुँह सूंघना या इवन गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक्स चेक करना, ये आप लोगों का बिल्कुल काम नहीं है। मैंने क्लियरली आप लोगों को मना किया है। अगर कोई आवाम में से इस चीज़ की शिकायत करेगा, मैंने अपना नंबर भी कंप्लेंट वाला दिया हुआ है लोगों को, उन अफसरान और जवानों के खिलाफ। How nice, yeah? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात है कि हम हमारे मुंह नहीं सूंघेंगे और हमसे निकाह कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मांगेंगे। गुड, नहीं, आप अच्छे काम है, डू थिंग्स दैट रियली मैटर। आपका कोई काम नहीं है कि आप लोगों को देखते फिरे कि उन्होंने शराब पी के नहीं पी हुई है। इफ़ ही इज़ ड्रंक यू विल नो दैट दिस गाय इज़ ड्रंक, ओके? देयर इज़ नॉट, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। बट आई गेस यू फॉरगॉट टू मेंशन कि यार आपको लोगों को इस तरह भी तंग नहीं करना है कि उठा के उनको ले जाएंगे रात को, एंड अगेन एक्सक्यूज़ माई फ्रेंच, कि आप उनको जेल में डाल के ज़बरदस्ती उनकी मुठे मारेंगे। ये भी कह दें, अब आप अपने इंस्ट्रक्शन दे दें अपने पुलिस वालों को कि यार ये काम भी आपने नहीं करना। आई मीन यार कोई हद होती है यार। एंड बाय द वे, इफ यू थिंक दैट द अकाउंट दैट द लॉयर इज सेइंग इज फॉल्स, आई वांट यू टू लिसन टू अबू बकर मुआविया's brother. Someone forwarded me his voice notes confirming exactly what has been mentioned by the lawyer. जो लॉयर जो बेसिकली अबू बकर मुआविया से बात करके वो बताया है, लेकिन फैसल ने ऑलरेडी ये बातें आउट कर दी थी बिफोर राय साकिब खरल्स इंटरव्यू. Now I've been holding back this evidence for so long, okay? And I've been hearing this stuff, and I've been trying to fight this guy's case online कि यार ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है. यार अगर आपको कुछ करना है तो go back to the first case. और जो IG पुलिस जो बैठा हुआ है ऑन द रिपोर्ट, वो क्यों बैठा हुआ है? निकालो रिपोर्ट बाहर. खैर सुने आप ज़रा ये क्या कहते हैं फैसल जो अबू बकर मुआविया के भाई हैं. अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं राती मिलਣ ਆ ਸਕਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮਜ਼ੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਛਦਰੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਜੜਾ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 30ਵੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ DNA ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਜੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਿਕਾਲਿਆ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਵੱਟੇ ਮੁੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਵਾਇਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉਤਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ DNA ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ. Okay, so you heard his account as well. So corroboration, okay, if you know law,
it's about not just the you know, when there's a story going out, जब आप story को follow करते हैं, आपने story को back up करना है, you have to hear it from many other sources, and not just for, in the case of the lawyer, he's actually the representative of Abu Bakr Muawiyah, so it can't get any better than that. And his brother is giving the same story, so the stories are matching up, they're adding up. अब आप सोचें, ये है हमारा criminal or justice system, so broken, and you know, people are baying for blood, and these guys have just cooked up a story because they couldn't pin him down on the first case, and they've assumed that he is guilty. इसने जो भी किया है, इसने लोगों को प्रेशर करके अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इसने वो जो बाप था मुदस्सर नज़र और उसका जो बेटा था, उन लोगों को पीछे हटा दिया अपने मौलवियों की गैंग को लेके, तो हम इसको जाने नहीं देंगे, उसको अब हम एक झूठा केस बना के इसको फंसाएंगे. यानी कि जस्ट इमेजिन व्हेन द लॉ इज़ ब्रेकिंग द लॉ, यानी कि और ऐसे वक्त ऐसा आ गया है कि पुलिस जो होती है वो आवाम के लिए की हिफाजत के लिए तैनात होती है, ठीक है. देयर सपोज टू प्रोटेक्ट अस एंड देयर सपोज टू इन्वेस्टिगेट फॉर अस. यहाँ काम उल्टा चल रहा है. We are trying to save ourselves from them, and we are investigating their work because they're not doing their work. And they're doing it so shoddily that a guy like me sitting all the way in Canada is able to report. Just by WhatsApp and through my contacts, I'm able to find what's happening on the ground. And I'm telling you, I've not even showed you some other stuff, which is very incriminating. And I will show it when the time is right. Maybe a second episode coming up. I'll talk more about that. But this is this is what has happened. Tandliawala all the way to Shadra case. And I'm telling, you know, my request to the government and my request specifically to Maryam Nawaz Sharif, and I want you to listen very clearly, Maryam. I don't know who it is in your close quarters who is misguiding you. Okay? ये लोग आपको फंसा के कल ये लोग निकल जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, ये निकल जाएंगे साइड पे, ये सारा मलबा आपके ऊपर गिरेगा, ठीक है? Because you were the one who gave them the orders. This is how politicians get stuck, because you guys don't have the right people around you, okay? And when you get these reports, you rely on them and you don't, you know, amanna wa sadaqna, like you don't know what happens in this country. You have faced it yourself. Maryam, you have faced false FIRs. You have seen how this the government bureaucracy was used to frame you and your father. Are you going to now let this happen to someone else? यार बहुत सारे मौलवी हैं जिन्होंने गलत काम किया है, आप लेके आए बिल, वी विल सपोर्ट यू, लेकिन यार ये बात बनती है कि आप लोग फॉल्स केसेस बना के लोगों को फंसाएंगे. People are going to lose faith in you guys. Already we have seen the debacle of the elections, and now we are watching this shit show coming up. अब पता नहीं और कितने shit shows इस तरह आते रहेंगे. This is not on, guys. This is not on. Please fix this matter. और एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ ना बोलें, और एक अब तीसरा झूठ ना बोलें. Fix this matter. जो भी है, मैं आपको recommendations नहीं दूंगा. I can if I want to, but you know that I don't want to go out of my lane. I just want to tell you, and I want to appeal to you, कि यार get involved in this. There are repercussions for this, not just for law and justice. There are also political ramifications of this. If you don't understand it, ask your father what happened when he tried to do something like this and where the party went after that. Okay, so don't take these things for granted. These are serious matters. They have societal impacts. They have judicial impacts. They have actually political impacts, and it's all going to go against you. So please, I'm appealing to you guys to look into this matter. इसको don't give a shit about कि कौन सा ट्राइब इसको endorse करेगा, कौन सा नहीं करेगा. मैं अगर गलत हूँ, मैं इसको मान लूँगा. मैं कहूँगा ठीक है, मैं गलत था. पहली FIR में जो भी मामला हुए, दूसरी FIR को तो आप तो भूल जाए ना. You know, forgive my language. टट्टी FIR है ये, ठीक है? ये सिर्फ आप लोग को फंसाएगी, ठीक है? It's making you a laughing stock. So go back to the first FIR. If he's guilty, if you find the shawahid और आपको जो भी proof मिलती है, if he's guilty,
वी विल सपोर्ट यू कि यार इसको जो भी आपने देना है इसको आपने दुर्रे मारने हैं इसको, या आपने उठा के उसको जेल में डालना है, या आपने उसको जान से मार देना है. I personally am not in the favor of giving people death penalties except for very few serious cases. But जो भी है आप करें इसको, and please find out who are these fifth columnists sitting next to you and also inside the state. Okay, जो लोग ये आप देख रहे हैं, ये लोग क्या, ये एक सेक्टेरियन गेम चल रहा है. सुफियान क्यों? What is going on? Anyways, that's my whole spiel for you guys. I hope you liked, and I got a little emotional over here because obviously जब नाइंसाफ़ी बंदा देखे तो उसमें गुस्सा तो आता है इंसान को, और एक इस नहज पे आ गया कि यार हम किस किस चीज़ को जस्टिफाई करें हम. This is not on. Anyways, thank you for listening to me. This has been a tough few days for me, as I have done this because I have been going against the stream, frankly. लोगों ने मुझ पे बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत सारे लेबल्स लगाए हैं, लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, but मैं इन सबको मैं जान लूँगा. You know, I know how to handle these people. I care about the truth. Let the truth come out, and that's all I care.